Hello friends, welcome back. So in the last video we have discussed about services. Okay, and so far we have discussed that services may have some task which runs on its own thread, like we have discussed media service. Okay, if you remember media service, in that what we have done, when this service start when this service is started, we are initiating one media player. We are initializing one media player object and assigning it some task like playing an audio file from raw resource. So what will happen? The media player will run on its separate thread and the service is running in its own thread. So as far as consider, both are running in different threads. So media player which is running in its own thread will not disturb our main thread, or in other words will not make our main thread to be halted. But if service is doing some long running task, okay, and the tasks are such that they are performing here only, to be performed here only, then what will happen? This task, which is very long running task, will make our application halt, because the task which we have written in service and is executing as a part of service will run on our main thread. No doubt service has no user interface, it is running in background, but still it is running in main thread. So if the task to be executed is long running task, it will halt the user interface. Client will have to wait, client will be forced to wait until the service is completed. So I have told you in the previous video that I will give you solution of that in this video. Actually, when if you remember, when we are adding service, we have two options, okay, service and intent service. So there are two type of services available in Android. Service, which we simply call as service, it halts the main thread, okay, and it will execute in it, means main thread. Whereas intent service के बारे में आपको बताऊं तो it does not halt the main thread, it executes in its own thread and it can also communicate with parent thread from which it is initiated via broadcast sender or via sending ब्रॉडकास्ट. तो ये इंटेंट सर्विस का जो क्लास है, मैकेनिज़्म है, वो हमें ज़्यादा उपयोगी हो सकता है, क्योंकि ये जो सर्विस बनेगी वो अपने खुद के थ्रेड में रन होगी, अलग से थ्रेड में, बैकग्राउंड में. वो सही शब्दों में एक बैकग्राउंड प्रोसेस कही जा सकती है, क्योंकि वो बैकग्राउंड में और अपने अलग से थ्रेड में रन होगी. ऑन दी अदर हैंड ये जो सर्विस है वो बैकग्राउंड में और मेन थ्रेड में रन होगी, तो मेन थ्रेड को भी वो डिस्टर्ब करेगी. जब तक उसका काम ख़त्म नहीं होगा तब तक मेन थ्रेड अपना काम शुरू नहीं कर पाएगा. ये हमने पिछले वीडियो में देखा था, ओके, कि जब हमने सर्विस पे क्लिक कर दिया, फिर जब हम वो टोस्ट मैसेज को क्लिक करने की शो करने के लिए जब शो मैसेज पे क्लिक करते हैं, तो जब तक सर्विस ख़त्म नहीं हुई तब तक हमारा वो टोस्ट डिस्प्ले नहीं हुआ था. तो चलिए हम अभी ऐड करते हैं दो और सर्विस. एक्चुअली मैंने अपना जो लेआउट है उसमें दो बटन ऐड कर दिए, स्टार्ट सिंपल सर्विस और स्टार्ट इंटेंट सर्विस. ओके, अब हम यहाँ पे दो क्लास ऐड कर देते हैं. वो जो मीडिया वाली सर्विस है वो भले रही, उसको भी हमें डिस्टर्ब नहीं करना. एक सिंपल सर्विस ऐड करेंगे हम, उसका नाम मैं क्या रखूँगा, माई सिंपल सर्विस. ओके, और उसमें ऑन स्टार्ट कमांड, और उसके अंदर केवल एक लाइन, toast.make text get application context और मैसेज फ्रॉम सिंपल सर्विस. ओके, और toast.landshot.show. ठीक है, रिटर्न स्टार्ट नॉट स्टिकी. फाइन, ये हमने कर दिया अपनी इस माई सिंपल सर्विस में. फिर एक दूसरी सर्विस को ऐड करेंगे, इंटेंट सर्विस. ओके, उसका नाम माई इंटेंट सर्विस 2 है, कोई बात नहीं.
अब जैसे ही आप ये सर्विस ऐड करोगे, इंटेंट सर्विस एक क्लास बन जाएगा जो इंटेंट सर्विस को एक्सटेंड करता है और उसके अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ आएगा। हमें ये सब की आवश्यकता नहीं है। हाँ, उसका कंस्ट्रक्टर रहने देना है, ठीक है, उसका कंस्ट्रक्टर भले रहा, उसके बाद जो भी है वो हमें निकाल देना है। एक मेथड रखनी है हमें ऑन हैंडल इंटेंट, क्योंकि ये वो मेथड है जो कॉल होगी जब हमारी ये सर्विस को हम रन करेंगे, तो ये मेथड कॉल होगी। कौन सी? ऑन हैंडल इंटेंट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? जैसे हमारी ये सिंपल सर्विस है उसमें ऑन स्टार्ट कमांड कॉल होती है, उस तरह से यहाँ पे ऑन हैंडल इंटेंट। दोनों में एक साम्यता है, ये आप देखो कि दोनों में ही आर्ग्यूमेंट हमें मिलती है इंटेंट का ऑब्जेक्ट। ये वही इंटेंट है जो मेन एक्टिविटी से रन हुआ था, ओके, और उसमें हमने सर्विस का रेफरेंस दिया था। इसमें भी हम एक टोस्ट मैसेज लिख देंगे, मैसेज फ्रॉम इंटेंट सर्विस, ठीक है, और टोस्ट डॉट लेंथशॉट डॉट शो। ओके, अब हम क्या करेंगे? हमारा जो सर्विस डेमो है क्लास, उसमें हम दो मेथड्स डिफाइन करते हैं, एक पब्लिक वॉइड स्टार्ट सिंपल सर्विस व्यू, और ऊपर एक इंटेंट का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बनाया हुआ है, सर्विस इंटेंट। यहाँ पे सर्विस इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, और दूसरी आर्गुमेंट माई सिंपल सर्विस डॉट क्लास, फिर स्टार्ट सर्विस करेंगे। ओके, सर्विस ये जो मेथड है स्टार्ट सिंपल सर्विस, उसको मैंने कॉल किया है। ये जो बटन है अपना स्टार्ट सिंपल सर्विस वाला जो बटन है, ठीक है, उसमें मैंने ये मेथड कॉल की है स्टार्ट सिंपल सर्विस। उसी तरह से एक दूसरी मेथड भी यहाँ पे डिफाइन करता हूँ मैं, पब्लिक वॉइड स्टार्ट इंटेंट सर्विस। ओके, और वहाँ पे क्या लिखेंगे हम? वही चीज़, बाकी सब कुछ सेम है, बराबर, केवल माई इंटेंट सर्विस 2। यहाँ पे भी आप देखो तो सर्विस को स्टार्ट करने के लिए मेथड वही है, सर्विस इंटेंट, और इस मेथड को भी मैंने कॉल कर दिया है स्टार्ट इंटेंट सर्विस को स्टार्ट इंटेंट सर्विस में, ठीक है। तो अभी रन करके देखते हैं कि दोनों बटन को क्लिक करने से वो जो टोस्ट मैसेज है वो आता है या नहीं। तो ये दोनों का जो मेन डिफरेंस है वो आपको पता चल जाना चाहिए कि दोनों है सर्विस, दोनों बैकग्राउंड में रन होती है, एक मेन थ्रेड पे रन होती है और दूसरी अपने खुद के चाइल्ड थ्रेड में। ओके, तो ये एक बात भी यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए, चाइल्ड थ्रेड पे ऐसा कॉन्सेप्ट हमें पहले आ गया है। स्टार्ट सिंपल सर्विस, उसका मैसेज आ गया, स्टार्ट इंटेंट सर्विस, देखो इसका मैसेज नहीं आया। स्टार्ट इंटेंट सर्विस का मैसेज नहीं आया, मैंने अभी आपको बताया कि आपको ध्यान से सुनना है। ये अपना खुद का थ्रेड बना के उसमें रन होगा, तो सेकेंडरी थ्रेड बनता है, सेकेंडरी थ्रेड रन होता है, तो सेकेंडरी थ्रेड से हम कुछ भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं मेन थ्रेड पे तो डायरेक्ट नहीं कर सकते। एक्चुअली ये जो टोस्ट है वो भी हम कहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हैं? मेन थ्रेड पे। तो यहाँ पे एक हमें क्या करना होगा, हैंडलर डॉट पोस्ट, ठीक है ना। हैंडलर में बी गेट मेन लूपर, ओके, इस तरह से डॉट पोस्ट और उसमें न्यू रनेबल, ठीक है। और फिर यहाँ पे पब्लिक वॉइड रन,
और यहाँ पे हम वो टॉस मैसेज को यहाँ पे लिखेंगे। इसका कर्ली ब्रैकेट कहाँ गया, तो बाकी रह गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक हैंडलर का ऑब्जेक्ट बनाया और उसके थ्रू पोस्ट न्यू रनेबल। इससे क्या होगा, हैंडलर जो पोस्ट करेगा वो क्या होगा, मेन थ्रेड पे पोस्ट होगा। तो हैंडलर का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं कि जहाँ एक्चुअली हमें सेकेंडरी थ्रेड में से मेन थ्रेड को कम्युनिकेट करना है, तब ये हमने जब यूजिंग थ्रेड्स और एसिंक्रोनस टास्क डिस्कस किया था तब ये चीज़ आपके सामने आई थी। ये हमने तो केवल एक मैसेज हमें मेन थ्रेड पे पोस्ट करना है इसलिए किया क्योंकि ये सेकेंडरी थ्रेड रन होता है तो वो यूजर इंटरफेस व्यू को एक्सेस नहीं कर पाता। ओके, इसलिए देखो स्टार्ट इंटेंट सर्विस आ गया, मैसेज फ्रॉम इंटेंट सर्विस। तो ये एक सिंपल सा मैसेज डिस्प्ले करने के लिए भी हमें ये करना है, मतलब करना चाहते हैं तो, मैसेज को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों सर्विस में, माय सिंपल सर्विस जो है उसमें भी एक टास्क शुरू करते हैं। सपोज़ कि कोई हम ये जो इंटेंट है ना हमारा सर्विस डेमो में, ओके, उस इंटेंट में ये सर्विस इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, उसमें मैसेज एक लिख के छोड़ते हैं, हेलो NJS। ओके, हेलो NJS, ये हमने कहाँ पे लिखा, ये हमने मैसेज कहाँ पे रखा, सर्विस इंटेंट में। तो ये कौन सी सर्विस शुरू हो रही है, माय सिंपल सर्विस। तो माय सिंपल सर्विस में हम अगर चाहे तो उस इंटेंट में से डेटा को निकाल सकते। स्ट्रिंग, यहाँ पे मैसेज स्ट्रिंग टाइप का है, स्ट्रिंग मैसेज इक्वल टू इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, और नाम क्या था उसका, मैसेज। ठीक है, ये मैसेज अपने को यहाँ पे मिल गया। और यहाँ पे वो हम मैसेज डिस्प्ले करेंगे, मैसेज फ्रॉम इंटेंट, और यहाँ पे वो मैसेज भी हम डिस्प्ले कर देते हैं MSG। ठीक है, तो वो इंटेंट में से जो हमने यहाँ पे हमारी जो मेन एक्टिविटी है वहाँ से इंटेंट में जो रखा हमने वो यहाँ पे हमने निकाला। ठीक है, और उसी तरह से हम ये दूसरी सर्विस में भी कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरी सर्विस को रन करते वक्त सर्विस इंटेंट उसमें भी कुछ रख सकते हैं, डॉट पुट एक्स्ट्रा, क्या पुट करेंगे, मैसेज हेलो वी फॉर यू। ठीक है, उस मैसेज को वहाँ पे भी निकाल सकते हैं, माई इंटेंट सर्विस 2 में भी। यहाँ पे स्ट्रिंग मैसेज इक्वल टू इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा,
मैसेज, ओके। और यहाँ पे हम डिस्प्ले करेंगे मैसेज फ्रॉम इंटेंट, मैसेज फ्रॉम इंटेंट वहाँ पे, और यहाँ पे मैसेज, ठीक है। तो वो जो मैसेज यहाँ से बना है वो वहाँ से जो इंटेंट में से पास किया है वो यहाँ पे हम डिस्प्ले कर रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, ये हो सकता है। स्टार्ट सिंपल सर्विस, मैसेज फ्रॉम इंटेंट हेलो एनजेएस, स्टार्ट इंटेंट सर्विस, मैसेज फ्रॉम इंटेंट हेलो V4U। तो दोनों में ही हमने सर्विस स्टार्ट भी की और सर्विस को डेटा भी पास किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब थोड़ा टास्क डिफाइन करते हैं सर्विस में, उसको स्लिप करवाते हैं, ओके। सिंपल सर्विस में यहाँ पे सिस्टम क्लॉक डॉट स्लिप 5-6,000 सेकंड्स, यही चीज़ वहाँ पे भी लिखेंगे हम माई इंटेंट सर्विस में भी, ओके। अब देखिए जो डिफरेंस है वो आपको अभी पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है। देखो ये जो 100 मैसेज है उस पर क्लिक करता हूँ तो ये टेस्ट मैसेज आता है, टॉस्ट मैसेज, ठीक है। अब मैं सिंपल सर्विस को स्टार्ट कर देता हूँ और अब 100 मैसेज 6 सेकंड तक नहीं कर पाऊँगा मैं। 6 सेकंड के बाद जितनी बार मैंने क्लिक किया है उसके लिए मैसेज आएगा, ठीक है। लेकिन 6 सेकंड तक जब तक सिंपल सर्विस चालू थी तब तक ये मेन इंटरफेस जो है हमारा वो रुक गया, क्योंकि उसी के थ्रेड पे तो वो रन हो रहा है, उसको रुका कर तो वो आगे बढ़ा है। अब देखो स्टार्ट इंटेंट सर्विस पे मैंने क्लिक किया, वो चालू हो गया, 100 मैसेज पे क्लिक किया तो वो भी आया। वो थ्रेड अपना काम कर रहा है इंटेंट सर्विस वाला, और ये थ्रेड मेन थ्रेड भी अपना काम चालू रखता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है सिंपल सर्विस और इंटेंट सर्विस में, कि सिंपल सर्विस आपकी UI थ्रेड को हॉल्ट कर देता है, ठीक है। और दूसरी बात हमने अभी देखा कि सर्विस से एक्टिविटी से हम डेटा पास कर सकते हैं, उसी तरह से सर्विस में से भी हम डेटा को अगर वहाँ कुछ भेजना चाहे एक्टिविटी में तो भेज सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, हमें ब्रॉडकास्ट, क्या करना होगा, ब्रॉडकास्ट। तो एक बात आपको बताऊं, चलो कि हम ये करते हैं कि ये अपनी सर्विस है ना, कौन सी, सिंपल सर्विस, उसमें से रिटर्न से पहले मैं एक सेंड ब्रॉडकास्ट करता हूँ, ओके। इंटेंट पास करना होता है, उसमें एक इंटेंट ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, intent1 इक्वल टू न्यू इंटेंट, ये कौन सा था, मैसेज NJS वाला, ठीक है, NJS। कौन सा इंटेंट में ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ, NJS, इंटेंट1 में वो है, ओके, इंटेंट1। अब ये यहाँ से जैसे ही सर्विस ख़त्म होगी तो इंटेंट ब्रॉडकास्ट होगा, ठीक है, इंटेंट अभी ब्रॉडकास्ट होगा। अब सर्विस डेमो में मैं क्या करूँगा कि जो अपनी ऑन क्रिएट मेथड है वहाँ पे मुझे एक रजिस्टर रिसीवर करना पड़ेगा, रजिस्टर रिसीवर न्यू ब्रॉडकास्ट रिसीवर, और उसमें जो दूसरी आर्ग्यूमेंट है वो न्यू इंटेंट फिल्टर डबल कोट्स में NJS। तो ये ब्रॉडकास्ट रिसीवर किसके लिए बन गया, NJS के लिए, कि जब NJS ब्रॉडकास्ट होगा तो ये ऑन रिसीव मेथड कॉल होगी, और हम इस ऑन रिसीव में क्या करेंगे, टॉस डॉट मेक टेक्स्ट
अब टोस्ट डॉट मैक टेक्स्ट, वो तो बहुत सारे टोस्ट आ जाएंगे। तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे अपना जो लेआउट है उसमें स्टार्ट सिंपल सर्विस, उसके बाद दोनों बटन के नीचे हम एक एक टेक्स्ट व्यू रख देते हैं विथ wrap कंटेंट, यहाँ पे भी wrap कंटेंट और उसका आईडी टेक्स्ट व्यू 1। ओके, बाकी की चीज़ें उसमें सेम रखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसे बिलो कहाँ पे रखना है हमें, बटन स्टार्ट सर्विस 1। कौन सा बटन है ये, स्टार्ट सर्विस 1। ऐसा ही एक टेक्स्ट व्यू हम रख देंगे, इसमें हम टेक्स्ट भी रख देते हैं, डेटा फॉर सिंपल सर्विस। उसी तरह से यहाँ पे भी ऐसा ही एक टेक्स्ट व्यू, इस बटन के नीचे भी उसका आईडी टेक्स्ट व्यू 2 और इसको बिलो रखेंगे हम टेक्स्ट व्यू 1 बटन स्टार्ट सर्विस 2 के नीचे डेटा फॉर इंटेंट सर्विस। ठीक है, इस तरह से हमारा लेआउट बना है। देखते हैं इसको, डेटा, अच्छा स्टार्ट सिंपल सर्विस, अच्छा इन दोनों के बीच में वो टेक्स्ट बॉक्स रखा है ना हमने, तो ये बटन भी अब कहाँ पे आना चाहिए, बटन भी टेक्स्ट व्यू 1 के नीचे आना चाहिए। आ गया, सिंपल स्टार्ट सर्विस उसका जो डेटा होगा वो यहाँ पे आएगा और इंटेंट सर्विस का डेटा यहाँ पे आएगा। अब हमने क्या किया था कि जो हमें यहाँ पे रिसीव हो रहा है उसके लिए दो टेक्स्ट व्यू हम ले लेते हैं, टेक्स्ट व्यू 1 और टेक्स्ट व्यू 2। ओके, उन दोनों का रेफरेंस ले लेते हैं। टेक्स्ट व्यू 1 इज इक्वल टू टेक्स्ट व्यू फाइंड व्यू बाय आईडी r डॉट id डॉट टेक्स्ट व्यू 1। उसी तरह से टेक्स्ट व्यू 2 और यहाँ पे भी टेक्स्ट व्यू 2 और क्या करेंगे, अब यहाँ पे टेक्स्ट व्यू 1 डॉट सेट टेक्स्ट जो उसमें है वो तो रहने ही देना है, टेक्स्ट व्यू 1 डॉट गेट टेक्स्ट प्लस ये जो इंटेंट ब्रॉडकास्ट हुआ है, ये जो इंटेंट हमारा ब्रॉडकास्ट हुआ है सिंपल सर्विस में से इंटेंट NJS, ओके, उसकी एक्शन रखेंगे इंटेंट डॉट गेट एक्शन। ठीक है, ये हमने कहाँ पे रख दिया, टेक्स्ट व्यू 1 में। उसी तरह से हम माई इंटेंट सर्विस 2 में भी ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, जैसे सिंपल सर्विस में ब्रॉडकास्ट किया उसी तरह से हम इंटेंट सर्विस में भी ब्रॉडकास्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो एक्शन है वो क्या रखेंगे हम, V for U। ओके, और तो दूसरा ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, दूसरा ब्रॉडकास्ट रिसीवर रजिस्टर करना होगा। जैसे ये एक किया उसी तरह से दूसरा, और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या आएगी, V for U।
ओके। और यहाँ पे हम जो टेक्स्ट बॉक्स है वो कौन सा टेक्स्ट बॉक्स सेट करेंगे, टेक्स्ट व्यू 2, ठीक है। तो इस तरह से हम अभी टेस्टिंग करते हैं। हम मेन एक्टिविटी से हमने सर्विस को रन किया, उसको डेटा भी पास किया। सर्विस जब रन हो रही है तो वहाँ से कुछ ब्रॉडकास्ट भी किया जो वापस एक्टिविटी में सुने भी दी। ओके, ऐसा भी कर सकते हैं कि उस ब्रॉडकास्ट के साथ भी कुछ हम भेज सकते हैं, भेजना हो तो। अब देखो, डेटा फॉर सिंपल सर्विस, डेटा फॉर इंटेंट सर्विस। सिंपल सर्विस को स्टार्ट किया, वो रन हुई, 6 सेकंड्स वो हॉल्ट करेगी। फिर जब वो रन हो गई उसके बाद उसने डेटा सेंड किया, NJS यहाँ पे आ गया और यहाँ से शुरू हो गई अपनी V4U। 6 सेकंड तक हॉल्ट करेगी वो और फिर यहाँ पे वो V4U आ गया, ठीक है। अब और एक आपको इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ करवाता हूँ मैं, एक जादू, ठीक है। गेट टेक्स्ट के बाद एक हम थोड़ा स्पेस नहीं है ना, तो वो एक कॉलन जैसा करेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है ना। ठीक है, ये कोई पूछने की बात थोड़ी ना है, यहाँ पे भी, ठीक है। अब देखो, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि अगर ये जो हमने ब्रॉडकास्ट अंत में किया उसको मैं यहाँ पे शुरू में लिख दूँ तो क्या होगा, कोई बता पाएगा मुझे? मैंने पहले ब्रॉडकास्ट कर दिया, फिर मैंने टास्क शुरू किया जिसको 6 सेकंड का टाइम लगता है। ये टास्क कोई ऐसा टास्क है जो कुछ डाउनलोड कर रहा है, ठीक है। ऐसा ही मैं इंटेंट सर्विस 2 में भी करूँगा, ठीक है। जो इंटेंट सर्विस है उसको स्लिप करवाने से पहले ये, ठीक है, ब्रॉडकास्ट कर दिया। क्या किया मैंने? ब्रॉडकास्ट किया तो वो मिलना भी चाहिए, जैसे कि अब मिलना भी चाहिए। लेकिन अब होगा क्या कि सिंपल सर्विस से जो ब्रॉडकास्ट होता है वो 6 सेकंड बाद मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड जो इंटेंट सर्विस है उसमें से जो ब्रॉडकास्ट किया है वो तुरंत मिल जाएगा। तो यही डिफरेंस है दोनों में, क्योंकि सिंपल सर्विस एग्जीक्यूट्स ऑन यूज़र इंटरफेस थ्रेड इटसेल्फ हॉल्ट्स इट। देखिए, स्टार्ट सिंपल सर्विस, 6 सेकंड तक वो ब्रॉडकास्ट तो हो गया लेकिन यहाँ आया नहीं है। हाँ, 6 सेकंड के बाद आया, हो गया था पहले ब्रॉडकास्ट। इसको देखो, जैसे ही ब्रॉडकास्ट होगा तुरंत आ जाएगा, आ गया ब्रॉडकास्ट तुरंत आ गया। फिर वो अपना काम उसने चालू रखा क्योंकि वो सेकेंडरी थ्रेड है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से कुछ डेटा भी हम सेंड करते हैं। जो अपना सर्विस है वहाँ पे सपोज़ कि एक डाउनलोडिंग हो रहा है और थोड़े डाउनलोडिंग होने के बाद हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं कि इतना डाउनलोड हुआ, इतना परसेंट हुआ, इतना परसेंट हुआ। तो हम इंटेंट में पुट एक्स्ट्रा करेंगे, इंटेंट 1 डॉट पुट एक्स्ट्रा प्रोग्रेस, ठीक है। और उसको क्या रखेंगे हम, ये प्रोग्रेस को, ये टोस्ट बोस्ट अभी हम सब निकाल देते हैं, ठीक है। टोस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैंने क्या किया, ब्रॉडकास्ट सेंड किया, प्रोग्रेस सेंड किया। पहले मैंने प्रोग्रेस सेंड कर रहा हूँ 20, ओके, वैल्यू उसकी मैं सेंड कर रहा हूँ 20, ठीक है। और फिर मैंने इंटेंट को ब्रॉडकास्ट किया, फिर मैंने होल्ड किया 1 सेकंड, ठीक है।
वापस इंटेंट में पुट एक्स्ट्रा कर रहा हूँ 40, वापस उसको 1 सेकंड होल्ड किया, वापस कर रहा हूँ 40 के बाद 60। कुछ पेचीदा कुछ भी नहीं है इसमें, आप चिंता मत कीजिए, वेरी सिंपल है। जस्ट मैंने कॉपी पेस्ट ही किया है, स्लिप करवाया, इंटेंट में प्रोग्रेस ऐड किया, फिर स्लिप करवाया, वापस कुछ पुट किया, स्लिप करवाया, वापस कुछ पुट किया, स्लिप करवाया, वापस कुछ पुट किया, स्लिप करवाया, अंत में 100%। उसके बाद स्लिप करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी जो सिंपल सर्विस है उसमें से हम एक प्रोग्रेस भी हम पुट करके ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। तो 5 बार प्रोग्रेस अपडेट होना चाहिए ना, 20, 40, 60, 80 और 100। ये हमारा जो सर्विस डेमो है, सर्विस डेमो कहाँ गया, हाँ उसका जो ये वाला है उसमें हम बाजू में प्रोग्रेस भी बताएंगे। ठीक है, बाजू में प्रोग्रेस बताएंगे कैसे, इंटीजर प्रोग्रेस इक्वल टू इंटेंट डॉट गेट इंटीजर एक्स्ट्रा प्रोग्रेस। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 दे देते। ठीक है, यहाँ पे हम वो प्रोग्रेस बताएंगे और उसके बाजू में परसेंटेज भी। ठीक है, इस तरह से हमने थोड़ा फॉर्मेशन किया। उसी तरह से इंटेंट 2 में भी करेंगे, जो यहाँ पे किया है इंटेंट 1 डॉट ब्रॉडकास्ट 1000 वो सब हम यहाँ पे भी करेंगे। माई इंटेंट सर्विस 2। ओके, ये अभी अपने को इसको रन नहीं करना है। ठीक है, टॉस को इसको कमेंट दे देते हैं। ओके, प्रोग्रेस 20, फिर 1 सेकंड स्लिप, प्रोग्रेस 40 स्लिप, 60, 80 स्लिप, और 80 के बाद यहाँ पे तो स्लिप करवाना नहीं है अपने को। 100 वाला क्यों नहीं आया, हाँ 100। ठीक है, इस तरह से प्रोग्रेस भी हम दोनों में सेंड कर रहे हैं। टास्क रन हो रहा है बैकग्राउंड में सर्विस के अंदर, और जो कंप्लीशन हो रहा है वो ब्रॉडकास्ट भी हो कर रहा है कि इतना कंप्लीट हुआ, इतना कंप्लीट हुआ, इतना कंप्लीट हुआ। 20% के इंटरवल को वो कंप्लीशन का स्टेटस बना के वहाँ पे इन्फॉर्म ब्रॉडकास्ट कर रहा है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ऐसे ही एक लाइन लिख देंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ पे भी चेंज करना होगा, और अंत में ठीक है रन करते हैं इसको। देखो सिंपल सर्विस को मैं स्टार्ट करता हूँ, तो ये तो ब्रॉडकास्ट कर रही है। ओके, एंड में सब कुछ साथ में आ गया, एंड में क्या हो गया, सब कुछ साथ में आ गया। इस तरह से आया कि हमने पूरा कॉन्केट किया है, इसलिए अब इसको देखो, स्टार्ट इंटेंट सर्विस।
बारी बारी आ रहा है, वो सब कॉन्केट हुआ है ना, उसके लिए हम यहाँ पे हर बार कॉन्केट कर रहे हैं, इसलिए हो रहा है। कोई बात नहीं, हम यहाँ से वो टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं, टेक्स्ट व्यू का डेटा फॉर सिंपल सर्विस। कोई बात नहीं, वो हमें वो आगे का जो पार्ट है वो नहीं चाहिए, ठीक है ना, वो निकाल देते हैं। गेट टेक्स्ट प्लस नहीं करना है, कॉन्केट नहीं करना है, उसको वहीं पे रहने देते हैं, निकाल दिया, ठीक है। स्टार्ट सिंपल सर्विस। अभी ये 5 सेकंड का टाइम लेगा। आगे 100% डायरेक्ट वो जो इंटरवल्स है वो उसने नहीं बताए, ये देखिए ये इंटरवल बता रहा है, इसका मतलब कि कम्युनिकेट कर रहा है ये, और ये सेकेंडरी थ्रेड पे रन हो रहा है, तो और कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम प्रोग्रेस बार जैसा भी कुछ रख सकते हैं, जैसे कि अपनी इस एप्लीकेशन में नीचे में एक लेआउट रख दूँ प्रोग्रेस बार, ठीक है। उसकी विड्थ, फिल पेरेंट, और ये वेब कंटेंट, और मार्जिन 10, और पेडिंग 10, और मैक्स वैल्यू उसकी 100, और इनिशियल वैल्यू उसकी 0। ओके, कहाँ पे रखना है उसे? बिलो टेक्स्ट व्यू 2, यहाँ पे ये प्रोग्रेस बार अपना हॉरिजॉन्टल आना चाहिए। स्टाइल एंड्रॉयड स्टाइल विजेट, ठीक है, आ गया। ओके, बैकग्राउंड कलर उसका एज F000 ब्लैक, वाइट हो गया ये, कोई बात नहीं, वाइट है तो भी ओके। और का जो कलर होना चाहिए प्रोग्रेस ड्राइबल, प्रोग्रेस का कलर वो रेड, फोरग्राउंड क्या कहते हैं उसको, सेकेंडरी प्रोग्रेस टिंट, सेकेंडरी प्रोग्रेस टिंट मॉड, और कलर की बैकग्राउंड foreground, yes, foreground color, color रेड डार्क, बहुत सारे कलर है इसमें,
मैंने अभी रेड डार्क रखा है। अब क्या करेंगे, इस प्रोग्रेस बार का एक आईडी भी दे देंगे, आईडी प्रोग्रेस 1, ठीक है। और ये जो अपनी एक्टिविटी है वहाँ पे उसको रिट्रीव भी करेंगे, प्रोग्रेस बार अच्छा, एक एस कम पड़ा है यहाँ पे। प्रोग्रेस बार इज इक्वल टू प्रोग्रेस बार फाइंड बाय id r.id प्रोग्रेस 1, ओके। अब इसको हमें अपडेट करना है कब, वहाँ से ब्रॉडकास्ट हो तब, कौन से इंटेंट में, v4u में, क्योंकि वो उसी में तो वो दिखाई देगा। अदरवाइज़ जो सिंपल सर्विस है उसमें तो लास्ट में पूरा एक साथ में आएगा तो कोई काम का नहीं रहेगा, ठीक है ना। जैसे कि अगर आप देखो तो ये जो सिंपल सर्विस है, यहाँ पे सपोज हम प्रोग्रेस बार जो है हमारा प्रोग्रेस बार, ठीक है, उसको अगर हम यहाँ पे सेट प्रोग्रेस करते हैं, प्रोग्रेस, ओके, तो क्या होगा, वो तो अंत में ही दिखाई देगा। स्टार्ट सिंपल सर्विस, उसमें तो सब कुछ ख़त्म होने के बाद लास्ट में ही प्रोग्रेस फुल आ गया, ठीक है। लेकिन अगर हम उसे रखते हैं यहाँ पे, इंटेंट सर्विस में, देखो वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये v4u डेटा वहाँ से इंटेंट की एक्शन है जो ब्रॉडकास्ट हुआ है उसे भी एक्सेस किया। ये जो वैल्यू आई 100 वो पुट एक्स्ट्रा किया, जब ब्रॉडकास्ट किया तो उसमें डेटा रख के ब्रॉडकास्ट किया। तो जब इंटेंट हमें मिला तो उसमें से हमने डेटा निकाला प्रोग्रेस का और फिर यहाँ पे उसकी वैल्यू सेट कर दी प्रोग्रेस बार पे। तो ये था दोस्तों सर्विसेज, 2 टाइप ऑफ सर्विसेज, सिंपल एंड इंटेंट सर्विस। सिंपल सर्विस रन ऑन द मेन thread and halts the main user interface thread from going ahead, whereas intent service run on a secondary thread, so it is easy to manage. It does not halt the user interface thread. User interface thread can do its own work and some tasks can be performed in the secondary intent service task thread. Okay, तो ये था सर्विस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब थियोरी लेक्चर हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा लास्ट चैप्टर अभी बाकी है, चैप्टर नंबर 11 ऑफ योर सिलेबस ऑफ योर टेक्स्ट बुक, दैट इज़ ड्रॉएबल्स, ओके, उसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहे, सुरक्षित रहे।